Welcome to Pariksha Institute. It's me पुरुषोत्तम कुमार. बोर्ड एग्जामिनेशन अग्रवाल अनसॉल्व सेट नंबर B3 का सेक्शन ए आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का. चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. The communities of ants are sometimes very large, numbering even up 500 individuals, and it is a lesson to us that no one has ever yet seen a quarrel between any two ants belonging to the same community. चींटियों का समुदाय कभी कभी बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि उनकी संख्या 500 तक होती है, और यह हमारे लिए एक सबक है कि आज तक किसी ने एक ही समुदाय की दो चींटियों के बीच झगड़ा नहीं देखा है. On the other hand, it must be admitted that they are in a hostility not only with most other insects, including ants of different species, but even with those of the same species if they belonging to different community. दूसरी ओर यह स्वीकार करना होगा कि वे न केवल विभिन्न प्रजातियों की चींटियों सहित अधिकांश अन्य कीड़ों के साथ शत्रुता में ही हैं, बल्कि यदि वे विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं तो एक ही प्रजाति के कीटों के साथ भी शत्रुता रखते हैं. I have over and over again introduced ant from one nest to another of the same species, and they were invariably attacked, seized by a leg or a antenna, and dressed out. मैंने बार बार एक ही प्रजाति की चींटियों को एक घोंसले से दूसरे घोंसले में पहुंचाया है, और उन पर हमेशा हमला किया जाता है. एक पैर या एंटीना से पकड़ लिया जाता था और बाहर खींच लिया जाता था. It is evident therefore that the ants of each community all recognize one another and were perfectly friendly while they at once attacked ants from a different nest although of the same species. अतः यह स्पष्ट है प्रत्येक समुदाय की चींटियां एक दूसरे को पहचानती थी और पूरी तरह से मित्रवत थी, जबकि उन्होंने तुरंत एक अलग घोंसले से चींटियों पर हमला किया भले ही वे एक ही प्रजाति की थी. It has been suggested that the ants of each nest have some sign or password by which they recognize one another. To test this, I made some of them insensible. First, I tried chloroform, but this was fatal to them, and I did not consider the test satisfactory. I decided, therefore, to intox- intoxicate them. This was less than easy than I had expected. None of my ants would voluntarily degrade themselves by getting drunk. यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक घोंसले की चींटियों के पास कुछ संकेत या पासवर्ड होते हैं जिनके द्वारा वे एक दूसरे को पहचानती हैं. इसका परीक्षण करने के लिए मैंने उनमें से कुछ को असंवेदनशील बनाया. पहले मैंने क्लोरोफॉर्म की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए घातक था और मैंने परीक्षण को संतोषजनक नहीं माना, इसलिए मैंने उन्हें नशा देने का फैसला किया. यह मेरी अपेक्षा से कम आसान था. मेरी कोई भी चींटी स्वेच्छा से शराब पीकर अपना पतन नहीं करेगी. However, I got over the difficulty by putting them into the whiskey for a few moments. I took 50 specimens, 25% from one nest and 25% from another, made them dead drunk, marked each with a spot of paint, and put them on a table close to where other ants from one of the nests were feeding. The table was surrounded as usual with a moat of water to prevent them from straying. The ants which were feeding soon noticed those which I had made drunk. हालांकि मैंने उन्हें कुछ क्षणों के लिए विस्की में डालकर इस कठिनाई से छुटकारा
पा लिया। मैंने 50 नमूने लिए, एक घोंसले से 25% और दूसरे घोंसले से 25%। उन्हें पूरी तरह से नशे में धुत कर दिया। प्रत्येक को पेंट के एक डिब्बे से चिन्हित किया और उन्हें एक मेज के पास रख दिया जहां एक घोंसले से अन्य चींटियां भोजन कर रही थीं। उन्हें भटकने से रोकने के लिए मेज को हमेशा की तरह पानी की खाई की ओर खाई से घेर दिया। भोजन कर रही चींटियों की नजर जल्द ही उन चींटियों पर पड़ी जिन्हें मैंने मदहोश कर दिया था। They seemed quite astonished to find their comrades in such a disgraceful condition and were as much at a loss to know what to do with them as we were. After a while, however, they carried them all away. They took the strangers to the edge of the moat and dropped them into a water while they bore their friends home into a nest where by degrees they slept off the effect of the spirit. Thus, it is evident that they know their friends even when it is incapable of giving any sign or password. वे अपने साथियों को ऐसी अपमानजनक स्थिति में देखकर काफी आश्चर्यचकित थे और उन्हें भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे उनके साथ क्या किया यानी कि उनके साथ क्या किया जाए जैसे हम थे। हालांकि थोड़ी देर के बाद वे उन सभी को दूर ले गए और वे अजनबियों को खाई के किनारे ले गए और उन्हें पानी में छोड़ दिया जबकि वे अपने दोस्तों को घोंसले में ले गए जहां कुछ हद तक वे आत्माओं के प्रभाव से सो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे अपने दोस्तों को तब भी जानते हैं जब कोई संकेत या पासवर्ड देने में असमर्थ होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द राइटर वांट टू टीच अस फ्रॉम द पैसेज। लेखक हमें अनुच्छेद से क्या सिखाना चाहते हैं। द राइटर वांट्स टू टीच अस अबाउट द स्पेशल बिहेवियर ऑफ एंट एंड highlighting their ability to recognize the cooperate with member of their own community while being hostile to outsider। लेखक हमें चींटियों के सामाजिक व्यवहार के बारे में सिखाना चाहते हैं। वे यह दर्शाता है कि वे अपनी समुदाय के सदस्यों को पहचानते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं जबकि बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। Why did the writer conduct the experiment with drunk ants? लेखक ने नशे में धुत चींटियों के साथ प्रयोग क्यों किया? The writer conducted the experiment with the drunk ant test whether ant recognize each other through a sign or password even when they are incapable of giving any sign due to the intoxication। लेखक ने यह परीक्षण करने के लिए नशे में धुत चींटियों के साथ प्रयोग किया। क्या चींटियां किसी संकेत या पासवर्ड के माध्यम से एक दूसरे को पहचानती हैं भले ही वे नशे में होने के कारण कोई संकेत देने में असमर्थ हों। What has writer discovered that ant of one community do not welcome ant of another community? लेखक ने क्या खोजा कि एक समुदाय की चींटियां दूसरे समुदाय की चींटियों का स्वागत नहीं करती हैं। The writer discovered that the ant of one community do not welcome the ant of another community even if they belong to the same species. This is evident from the fact that ants from the different nests were attacked and dragged out when introduced to new टेस्ट। लेखक ने यह खोजा कि एक समुदाय की चींटियां दूसरे समुदाय की चींटियों का स्वागत नहीं करती है भले ही वे एक ही प्रजाति की हों। यह तथ्य इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब विभिन्न घोंसलों की चींटियों को एक नए घोंसले में पेश किया गया तो वे उन्हें हमला कर बाहर निकाल दिया उन्होंने हमला करके बाहर निकाल दिया। हाउ डू एंड सर्च देयर लॉस्ट कमरेड्स। चींटियां अपने खोए हुए साथियों को कैसे खोजती हैं। द एंड सर्च फॉर देयर लॉस्ट comrades by recognizing them even when they are intoxicated and incapable of giving any sign or password. They carry their friends back to the nest
एंड ड्रॉप स्ट्रेंजर इनटू द वाटर। चींटियां अपने खोए हुए साथियों को पहचान कर खोजती हैं, भले ही वे नशे में हों और या कोई संकेत या पासवर्ड देने में असमर्थ हों। वे अपने दोस्तों को घोंसले में वापस ले जाती हैं और अजनबियों को पानी में गिरा देती हैं। कम्युनिटी हेयर इज यूज्ड फॉर इन द पैसेज। कम्युनिटी किसके लिए यूज किया गया है पैसेज में? तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कॉलोनी, यानी कि ग्रुप ऑफ कॉलोनी ऑफ एंड्स, यानी कि कॉलोनी ऑफ एंड्स, जो चींटियों का समूह होता है उसके लिए कम्युनिटी वर्ड यूज किया गया है। फाइंड द सिनोनिम्स यूज्ड फॉर ड्रैग आउट। ड्रैग आउट सिनोनिम्स किसके लिए? तो यहाँ पर आपका पैसेज में आपका मीनिंग है सीज्ड, उसके लिए यूज किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस वाज लेस देन इजी, दिस वाज लेस देन इजी देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस इसमें हो जाएगा।